In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. Evening, a new week of the month, fresh start again, नई एनर्जी के साथ. Today is our third lecture of molecular basis of inheritance. I hope कि you all have done well in the last week. आपने सारे चैप्टर्स प्रॉपरली पढ़े होंगे, रिवाइज भी कर ही लिया होगा. तो आज की जो क्लास होगी, आज हम थोड़ा सा पीछे के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सब लोगों को गुड इवनिंग. सारिका, रूहिका, प्रीति, अनूप, देविका, आई होप ऑल आर वेल. सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं. ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी सब लोग स्वस्थ रहें. किसी तरह ये बुरा वक्त हम लोग का गुजरा है सभी का. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, थोड़ा बहुत जरा डिस्कस करें. कोई बताएगा आप में से व्हाट यू मीन बाय आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन. माइस में इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्सप्लेन वेल. बताइए. टेक्स्ट में द आंसर दिस क्वेश्चन. तब तक और ही बच्चे आ जाएंगे. स्वीटी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अभिषेक. आंसर बताइए. अगर आर स्ट्रेन हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एस स्ट्रेन इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हम लोगों ने लास्ट टर्म में पढ़ा था. थोड़ा सा पीछे का टॉपिक, ऐसा जैसा कि मेरी आदत है, पीछे के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज में जरूर करता हूं, सो दैट यू विल बी फैमिलियराइज विद योर करेंट टॉपिक कि क्या कर लिया है. अगर आप में से किसी ने अगर मिस भी किया है तो उनके लिए भी ये संजीवनी की तरह काम करेगा. None of you have answered yet. I am waiting. Preeti, Deepika, Sweetie, Abhishek. Few students are still absent. सिमरन नहीं दिख रही है.
R strain live, S strain die. Very good, Deepika. Can you tell the reason behind this? दीपिका ने आंसर किया R strain will live and the S strain will die, है ना? तो आप में से कोई क्या इसको कंप्लीट कर सकता है? ऐसा क्यों हुआ कि R strain में ऐसा क्या था, S strain में ऐसा क्या था? Can anybody have idea of that? चलिए दीपिका आप ही बताइए। आर और एस स्ट्रेन में ऐसा क्या चेंज है कि एक कंडीशन में जो बैक्टीरिया है जिंदा रह रहा है, तो दूसरे कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो मर जा रहा है? थोड़ा सा हम टॉपिक को डिस्कस करें तो मैं बता दूं आप लोगों के मेमोरी के लिए, याद रख दिलाने के लिए। इट वॉज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन 1928, जिसमें ग्रिफिथ ने ये प्रूव किया कि देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। और 5 थ्योरीज पढ़नी है हम लोग को इस चैप्टर में, जिसमें से एक कोई भी 100% आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर से हो, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे वो 3 नंबर में हो। मैक्सिमम जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी है मार्क्स की वो 3 मार्क्स है। 5 थ्योरी, 1 क्वेश्चन, 100%। गुड इवनिंग सिमरन, यू आर टू लेट टुडे, इज इट ओके विद यू? तो none of you have answered yet. I am just waiting कि why R strain live and S strain the mice will die. What is the reason behind it? Deepika, you have not explained. देखिए सिमरन आते आते ही छक्के लगाने लगी, धुआंधार बल्लेबाजी आते ही। S पैथोजेनिक है और R इज नॉन पैथोजेनिक है। वेरी गुड। तो ये तो कारण हो गया ना बेटा सिमरन। दिस इज द रीजन दैट यू आर सेइंग कि R इज पैथोजेनिक, जिसको हम वायरुलेंट भी कहते हैं, राइट? वायरुलेंट बोलना ही विल बी राइट, है ना? और ये हमारा है नॉन वायरुलेंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया वायरुलेंट पैथोजेनिक, जिसको आप कहते हो लेमैन भाषा में, मैंने बताया था ताकि सबको समझ में आ जाए। बेसिकली जो चीज आपको समझनी है रीजन बिहाइंड, वो ये है कि इन द केस ऑफ RS strain देयर इज अ स्मूथ सरफेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, है ना? याद आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, है ना? क्यों? तो ड्यू टू द, देखें जरा किसी ने कुछ अभी तक आंसर किया या नहीं। ड्यू टू, एनी वन ऑफ यू? ड्यू टू, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। ड्यू टू विच ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द क्लास 11th कॉन्सेप्ट? ड्यू टू विच बायो मैक्रोमोलिक्यूल the Streptococcus pneumoniae of the S strain will lead to the death of the mice when it gets injected into that, and when it is injected by the R strain, there is a live condition, the mice will not die. Clear? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसका रीजन देना है आप लोगों को। आई एम वेटिंग। ऐसा क्या था कि द सरफेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस वाज स्मूथ? वेरी गुड दीपिका, फाइनली यू फाउंड आंसर। सिमरन फाउंड आंसर, वेरी गुड। कोमल, गुड इवनिंग बेटा, यू आर ऑल्सो टू लेट टुडे। ड्यू टू पॉलीसैकेराइड, very good. And polysaccharides are the carbohydrates. These are the carbohydrates that make the Streptococcus pneumoniae virulent, pathogenic, and it leads to the death of the individual once it gets injected into the organism. जैसे ही इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन को माउस में, बेचारा निपट गया। इसको किया, बेचारा जिंदा रहा, मौज में रहा। मौज में इसीलिए रहा क्योंकि ये पैथोजेनिक नहीं है, इसका सरफेस रफ है, इसमें पॉलीसैकेराइड की कमी है, देयर इज नो शुगर, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट,
on the upper surface, which might be one of the reason behind the death of the individual in the case of S strain, and in the case of R strain it was not there, polysaccharide नहीं था. So this was one of the topic that what we have discussed yesterday. Yesterday means in our previous class. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी. 2 हम लोगों ने कर लिया था, है ना. पीछे वाले टॉपिक में किसी को और कोई तो डाउट नहीं रहेगा जो अभी मैंने डिस्कस किया है इसमें? एनीवन? एंड आई होप कि जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं वो ऐप को एडवांटेज में ले रहे हैं, वीडियो जो अपलोडेड रहती है उससे. चलिए, तो नेक्स्ट आज का हमारा होगा टॉपिक प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए, हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, है ना. हेडिंग लिखेंगे प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं. हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952. अब यहां पे समझना क्या है, इन्होंने एक्चुअली प्रूफ किया डीएनए के बारे में. अभी तक जो 2 साइंटिस्ट के बारे में, मतलब 2 कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया. एक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928. उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग इन द न्यूक्लियस, देयर इज समथिंग इन द क्रोमेटिन फाइबर दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, राइट, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ इंडिविजुअल. ये हर आपका जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था 1928, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये बात उन्होंने कही. उसके बाद आए 3 लोग, ऑसवाल्ड, मैकलियोड एंड मैकार्टी. ठीक, उन लोगों ने क्या करा था, उन लोगों ने ये बताया कि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उसको नॉन वायरुलेंट से, नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट करता है. ठीक, तो 2 कंट्रीब्यूशन हो गए. तीसरे कंट्रीब्यूशन में हर्षे एंड चेज 1952, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने उस बात को प्रूफ किया कि हाउ डीएनए विल बी जेनेटिक मटेरियल, है ना. इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने वायरस ली, है ना. पहले इसको समझ लीजिए थ्योरी को. इन्होंने वायरस को लिया और उसको रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कराया. कई बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर उसको रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कराने का कारण क्या है. तो कारण थोड़ा सा इसको हम पीछे चलें और समझाएं आपको. कौन, क्या लिखा मैंने, ये कौन. कौन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कौन है ये, कौन है ये, ठीक है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में कंसीडर किया जाता है. कौन, तो कौन कंसीडर किया जाता है. ठीक, अब अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारा कोई भी बॉडी कंस्टिट्यूएंट है, ये सभी एलिमेंट, चारों एलिमेंट मेनली आप जो डेली रूटीन में जो भी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभी चीजें ही आपको ये 4 एलिमेंट मोस्टली प्रोवाइड करती हैं. एंड द लेटर ऑन यही वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के कंपोजिशन के लिए,
बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट? मतलब अगर हमने कहा कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट में या जो हमारे बॉडी के प्रोटीन्स में जो नाइट्रोजन है या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन में जो भी चीज हम ले रहे हैं उसी से हमें वो मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट मिल रहा है। कोई डाउट इस लाइन में आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। इसका मतलब जो हम खाते हैं वही हमारे बॉडी के कंस्टिट्यूएंट को बनाता है। गॉट इट? चलिए, तो साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा और उन्होंने क्या किया, वायरस को ग्रो कराया एक सर्टेन मीडियम में। ठीक, अब जब मीडियम में ग्रो कराया तो वायरस का तो अपना कोई डीएनए, कोई जीनोम होता नहीं है, लेकिन उनका जो आउटर बाउंड्री है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, उनकी जो प्रोटीनस कोटिंग जिसको आप कह सकते हैं, जो कोटिंग है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस मीडियम में इसको सल्फर मीडियम और फास्फोरस मीडियम, दो मीडियम में ग्रो कराया गया। सल्फर में इसीलिए ग्रो कराया गया क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन में पाया जाता है। नाइट्रोजन में इसलिए ग्रो कराया गया क्योंकि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सॉरी, दोनों चीजें थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बैक्टीरियोफेज। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। अगर आपको ध्यान में हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज का, है ना? ये समझ में आ रही बात? अब इसको जब दो अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया तो ऑब्वियसली जो इसके पास जो भी कंपोनेंट है प्रोटीन का, जो प्रोटीन कोटिंग है, उसमें वही प्रोटीन जाएगा जिस प्रोटीन से हम उसको क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। ठीक, अब जो फास्फोरस यूज किया गया वही फास्फोरस तो सिस्टम के आपके डीएनए में भी है, जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब बैक्टीरियोफेज का मतलब है, अब मैं ये मिटा दूं, है ना, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियो के फेज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, मतलब वो वायरस जिसका भोजन ही क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया ईटिंग। बैक्टीरियो फेज मतलब खाने वाला, इनगल्फ करने वाला, निगल जाने वाला। अब उन्होंने ग्रो कराया। अब जब ग्रो कराया और फिर उसको बैक्टीरिया में क्या किया, इन्फेक्ट कराया। ठीक, अब जब इन्फेक्ट कराया तो इसमें से जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थी वो चली गई बैक्टीरिया की बॉडी में, फिर वहां उसका ब्लेंडिंग हुआ, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड देन आइसोलेशन। 3 स्टेप्स में था। ध्यान से समझिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है बोर्ड में एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड एम्प्लीफिकेशन एंड देन एक्सटेंशन भी हम उसको कह दे रहे हैं। हुआ क्या, जैसे ही ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए में जाके क्या कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके साथ ब्लेंडिंग हो जाएगी, उसकी मिक्सिंग हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया का काम, वायरस का काम ही है दूसरे के जीनोम को यूज करना। ठीक, देन व्हाट हैपन, जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, फिर ब्लेंड करेगा, उसके बाद दे विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इसका नेचर है। ठीक, जैसे इसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी, फिर वी विल आइसोलेट देम एंड आफ्टर आइसोलेशन, जब ग्रिफिथ ने, सॉरी, जो हर्शे एंड चेज थे, इन्होंने जब उस आइसोलेशन को स्टडी करी तो उनको ये समझ में आ गया कि जो भी मॉलिक्यूल उसमें अवेलेबल है, ठीक, वो मॉलिक्यूल एज इट इज बैक्टीरियोफेज को जिस मीडियम में ग्रो कराया था उस तरह का नहीं है। ये समझ में आ रही लाइन सबको? ये लाइन सबको समझ में आ रही? कोई डाउट, एनी डाउट?
एनी डाउट इतने तक? चलिए नहीं है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी पे हम आगे बढ़े। अब हुआ क्या कि जब इनकी ब्लेंडिंग हुई, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए इसको समझिए फिर से नए सिरे से। बैक्टीरियोफेज सबको समझ में आ गया, द वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया, ठीक। अब इसमें है क्या बेसिकली, दिस एक्सपेरिमेंट पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, and fourth one we can say isolation. कॉपी करिए पहले इसको, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉपी करिए। मैं इसी में यहीं पे डायग्राम बना दे रहा हूं, है ना। ये था S35 और ये था P32, ठीक है। दोनों बैक्टीरियोफेज हैं। अब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक ना। ये भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, और ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। दो अलग अलग तरह के फास्फोरस 32 और S35, ये इन दो मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, इसका जो भी जीनोम है ये आ गया इसके अंदर, रिलीज कर दिया। देन व्हाट हैपेन, ये जो बैक्टीरिया है, जो इनका जीनोम है, ये इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कॉपी बनाएगा, ठीक। तो कई सारी कॉपी बनेगी इसमें, कई सारा बैक्टीरियोफेज भी बनेगा। माई डायग्राम इज नॉट क्वाइट गुड, तो सो आप अपना मैनेज करिएगा, है ना। अब ये साथ में कॉपी भी करेगा, क्योंकि ये जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, ये जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, कॉपी करेगा। फिर हमने इसको आइसोलेट किया, निकाला बाहर, ठीक। और अब ये चूंकि कई सारे होंगे, मल्टीपल कॉपीज होंगी। देन व्हाट दे ही ऑब्टेन, कि जो सल्फर 32 35 था, ये जो नई कॉपी बना रहा है, तो इस सभी में ये S35 जो रेडियो एक्टिव था वो एब्सेंट था, जबकि मतलब ये क्या था, एब्सेंट था, नहीं था। लेकिन जो P32 में था, इसमें क्या हुआ, ये अवेलेबल था। क्यों, कारण क्या हुआ,
कारण ये हुआ कि जब आपने इसको ग्रो कराया था बैक्टीरियोफेज को S35 मीडियम में, इसको ग्रो कराया था फास्फोरस के मीडियम में, तो व्हाट ही फाउंड कि चूंकि सल्फर तो प्रोटीन में है, डीएनए में तो होता नहीं सल्फर, तो ये सल्फर जो था ये नए बैक्टीरियोफेज में अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन नॉट इन डीएनए। वही जो फास्फोरस में ग्रो कराया, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज देयर, प्रोटीन में तो फास्फोरस होता नहीं है, तो जो नए बैक्टीरियोफेज जो बने तो वो P32 फास्फोरस में इसके बैक्टीरियोफेज में अवेलेबल था। अब ये अवेलेबल होने का मतलब क्या प्रूफ हुआ कि कहीं ना कहीं डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है, और वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। जो नया डीएनए है, जो नया डीएनए कॉपी बना रहा है, वो इसी डीएनए से जो ऑलरेडी अवेलेबल था उसी से मल्टीप्लाई कर रहा है और वो कॉपी कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द केस दैट प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वॉट एवर द डीएनए इज देयर इन द पेरेंट्स विल बी एग्जैक्टली कॉपीड टू द नेक्स्ट जनरेशन और न्यू जनरेशन, नॉट अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके साथ एक भी कंट्राडिक्शन ये भी हो गया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फास्फोरस चूंकि डीएनए में अवेलेबल है, डीएनए में पाया जाता है, इसका मतलब दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? अच्छा, दिस लाइन विल बी रिपीटेड ना? ओके, रेस्ट ऑफ यू? और सबको समझ में आ गया? दीपिका, कोमल, अभिषेक, स्वीटी, आप सब लोग रिस्पॉन्स किया करिए, तभी आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए फिर से देखिए, अभिषेक ने कहा डायग्राम को रिपीट करिए। ओके फाइन, देखिए अभिषेक, दो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिया है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं रेडियो एक्टिव, ठीक ठीक। अब यहां पे आप एक सवाल भले पूछ सकते थे, और ये सवाल बनता है क्योंकि मैंने ये बताया ही नहीं कि सर रेडियो एक्टिव में क्यों ग्रो कराएंगे हम। ये एक सवाल तो बनता है, ये लाजमी है, ये होना भी चाहिए था, आई होप, है ना। तो रेडियो एक्टिव में ग्रो इसीलिए कराया गया ताकि हम इसको नेचुरली जो भी मॉलिक्यूल है, सल्फर नेचुरल होगा इसमें क्योंकि प्रोटीन कोटिंग है, डीएनए जो भी होगा इसमें वहां भी हमारा फास्फोरस होगा, नेचुरल फास्फोरस है, ठीक। तो जब ये दो अलग अलग रेडियो एक्टिव में ग्रो कराया गया बैक्टीरियोफेज में, इन दोनों में को अलग अलग मीडियम में, तो इसके मॉलिक्यूल भी रेडियो एक्टिव हो गए, इसके मॉलिक्यूल भी रेडियो एक्टिव हो गया। मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है दोनों बैक्टीरियोफेज का, ये फुली रेडियो एक्टिव हो गया। अब इस रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराया गया, है ना। क्या था? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, मल्टीप्लिकेशन, आइसोलेशन। इन्फेक्शन कराया, और जब ये इन्फेक्शन हुआ तो इसने अपना जो भी डीएनए था, जो भी मटेरियल था इसका, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे जो भी हो, बैक्टीरियोफेज में आ गया, सॉरी बैक्टीरिया में इन्फेक्ट हो गया, चला गया बैक्टीरिया में आ गया। और फिर ये दोनों, क्योंकि इसका अपना नेचर है बैक्टीरियोफेज का, और क्या कहते हैं, इसका भी अपना एक नेचर है बैक्टीरिया का, रिप्रोडक्शन करते रहना हर 20 मिनट में। इसने क्या किया, इस जीन के साथ, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, डीएनए के साथ ब्लेंड कर गया, मिक्स हो गया। और मिक्स करने के बाद बैक्टीरियोफेज ने अपना काम शुरू किया, अपनी संख्या बढ़ाएगा, वो उसका नेचर है वायरस का, जैसे किसी होस्ट में घुसा। अब इसने अपने आप को कॉपी करना दोनों ही केस में शुरू कर दिया, ठीक। जब ये शुरू करता चला गया तो फिर हमने उसमें प्रेजेंट बैक्टीरियोफेज को उन दोनों लोगों ने बाहर निकाला, आइसोलेट कर लिया। जब आइसोलेट किया तो पहले केस में, एस वाले में,
जो एस है रेडियो एक्टिव था, वो अब रेडियो एक्टिव यहां नहीं था। मतलब जो नया बैक्टीरियोफेज था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन जो दूसरा था फास्फोरस वाला वो रेडियो एक्टिव मिला। अब ये रेडियो एक्टिव मिला, इसका मतलब कि जब ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, जब ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वही डीएनए के कारण हो रहा है जो डीएनए इनिशियली बैक्टीरियोफेज में था। ये भी इन्फेक्टेड था, रेडियो एक्टिव थी मॉलिक्यूल, जो नया बना रहा है वो भी रेडियो एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में यूज में आता है, न कि प्रोटीन मॉलिक्यूल। और सल्फर हमारा चूंकि प्रोटीन में होता है, फास्फोरस हमारा डीएनए में होता है, तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जो इसकी कोटिंग है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसके अंदर जो पार्ट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो जीनोम है इसका, जो भी इनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रूफ के लिए कि हाँ दैट इज व्हाट द जेनेटिक मटेरियल। कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप कॉपी कर लिया होगा आपने, ज्यादा तो लिखा नहीं मैंने। तो दिस वाज द, फिर लिखिए, हेडिंग लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखिए, कंक्लूजन में लिखिए कंक्लूजन में लिखिए दिस experiment shows that protein is not genetic material. Protein is not a genetic material, rather DNA acts as a genetic material that were isolated from bacteriophage of phosphorus, bacteriophage with radioactive phosphorus, that were isolated from bacteriophage with radioactive phosphorus molecule, that were isolated from bacteriophage that have phosphorus as a that have phosphorus as radioactive molecule. डन? क्लियर हो गया? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी तक, इतने टॉपिक पे? हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या लिखेंगे इसमें आप? चलिए सजेस्ट करिए आप ही। व्हाट विल यू राइट? अगर आपको जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को राइट करना है, लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अभिषेक, दीपक, प्रीति, सिमरन, एनी वन ऑफ यू? सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो एक जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू। आई एम वेटिंग। किसी भी जेनेटिक मटेरियल में या उनकी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? टेल मी द आंसर।
जेनेटिक मटेरियल में क्या उनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? द मटेरियल शुड बी स्टेबल। लिखिए, जेनेटिक मटेरियल की पहली प्रॉपर्टीज, इट शुड बी स्टेबल and should not be reactive। पहला लिख देता हूं मैं, it should be highly stable। it should be highly stable। it should be highly stable। फिर लिखिए सेकेंड पॉइंट में, it is most common genetic material in all living organism। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। some organisms have RNA as जेनेटिक, मतलब बहुत कम है जेनेटिक मटीरियल विज में वेरी गुड आंसर अभिषेक, वेरी गुड। सिमरन, योर आंसर इज ऑल्सो गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, मैंने पहले भी बोला है कई बार। यू आर वेरी, दिस सेशन इज वेरी गुड। और भी बच्चे हैं, उनमें से दीपिका, प्रीति, आप लोगों ने आंसर नहीं किया। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यू शुड आंसर वॉट एवर यू नो। साथ में कॉपी भी करते रहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें हमारा पहला तो HIV हो गया, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, साई 156 हो गया, कई सारी हैं, दो भी लिख लेंगे तो काफी है। ठीक है, TMV का मतलब पता है ना आप लोग को, टोबैको मोजाइक वायरस, लिख ही दे रहा हूं मैं, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, कोविड वायरस भी लिख सकते हैं आप, है ना, कोविड-19, इसमें भी RNA ही जेनेटिक मटेरियल है, कॉपी करिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में एक आंसर वैसे मैंने शायद लिखवाया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ध्यान में रहता नहीं मुझे, कई सारी बैचेस होती हैं क्लास 12th की हर रोज, तो समटाइम्स ये थोड़ा मेशी टाइप का हो जाता है कि किस बैच में क्या लिखवाया है। तो आप कोई चीज दोबारा लिखेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, वाई DNA इज जेनेटिक मटीरियल।
ठीक, कौन बताएगा? वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? कौन बताएगा? वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? मैंने अगर बताया होगा तो आई होप आप आंसर जरूर करेंगे सारे बच्चे आप में से। ओके सिमरन, ओके, तो वी शुड डिलीट दिस क्वेश्चन. Should we delete or we have to write the answer? Because it is highly stable, जो ऊपर लिखा आपने, because of the absence of oxygen that at the second position of sugar molecule that makes it most stable, and it also obeys the laws of Mendel's inheritance. ये मैंने नहीं लिखवाया, लिखेंगे, लिख लीजिए. It obeys law of inheritance pattern given by Mendel. Absence of oxygen at second position of sugar makes it more stable. बस, ठीक है, makes it more stable. Don't worry, Abhishek, I have to take care of everyone. फटाक से कॉपी कर लीजिए, ज्यादा नहीं है ना. सिमरन आप मत लिखिए, वैसे ये लाइन मैंने नहीं लिखवाया है जहां तक मुझे ख्याल है. इट ओबेज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न गिवन बाय मेंडल. आई थिंक यू मस्ट राइट दिस ऑल्सो. कॉपी करिए सब लोग. तब तक मैं ऊपर इरेज कर देता हूं. नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. अभिषेक ये लिख लिया आपने? अभिषेक लिखिए, फिर फटाक से रिस्पॉन्ड करिए मुझे. ओके अभिषेक, प्रीति भी डन, वेरी गुड. अब इसको समझिए, सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है. सेमी कंजर्वेटिव, मेसेल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इनको हम. लिख लीजिए,
मेसेल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट 1958। चलिए इसको भी जरा आज निपटा डालें। आई होप कि ये टॉपिक तो हो ही जाएगा आज, इतना टाइम है हमारे पास। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं घर पे? मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पहले से अंदाजा है कि अगले टर्म में क्या पढ़ाई हो रही है, ऑब्वियसली अंदाजा होगा भी, क्योंकि जो चैप्टर डिस्कस करता है टीचर, उनको बच्चों को ये अंदाजा तो रहता ही है कि अगले टर्म में कितना टॉपिक होगा। तो उस टॉपिक को आप जरूर रीड करके रखिए अगर आप बेहतर रिस्पॉन्स चाहते हैं। हाँ, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, है ना, हाफ। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है रिमेन सेम, कंजर्व करना, रिमेन सेम। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो ये लाइन कुछ तो समझा रहा है आपको। क्या समझा रहा है? तो समझा ये रहा है कि अगर कोई डीएनए, जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए ये है, ठीक, 3' 5', 5' 3', ठीक, इसका रेप्लिकेशन हुआ, ठीक, रेप्लिका बना, तो ऑब्वियसली ये 2 बनाएगा सीक्वेंस। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या कह रहा है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो अगर हमने बेटा इसको अगर पेरेंट माना है तो दोनों पीपी है, ठीक, इसका मतलब एक पीपी है ब्लैक वाला, और जो दूसरा बन रहा है वो क्या है, न्यू है, एन फॉर न्यू, 3' 5' 3' 5'। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ये कहता है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, पी वाला, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, नया होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, न्यूली फॉर्म्ड, ठीक। और जो ब्लैक वाला है वो हो गया हमारा पेरेंटल डीएनए। मतलब ये कि किसी भी जनरेशन में, किसी भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जब डीएनए कॉपी कर रहा है, डीएनए जब डुप्लीकेशन कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, तो इन 2 डीएनए के स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड हमेशा फादर या मदर का होगा, मतलब पेरेंटल होगा, और एक जो इसके साथ होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली रेप्लिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। तो ये तो हो गया इसकी कॉन्सेप्ट। लेकिन इन दोनों लोगों ने इसको प्रूफ किया, मेसेल्सन एंड स्थाल ने 1958 में। कब प्रूफ किया? 1958। मैं फिर से एक बार ईयर वाइज बता दे रहा हूं आपको। पहला एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का कौन था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, 1928। नेक्स्ट था ऑसवाल्ड मैक्लियोड मैकार्टी, 1933 से 44। फिर आ गया हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, 1953, एंड देन वी हैव मेसेल्सन स्थाल इन 1958। ईयर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको भी प्रूफ करने के लिए दे यूज्ड रेडियोएक्टिव N15 होगा, नॉट 14, रेडियोएक्टिव
ammonium chloride NH4Cl. They use radioactive ammonium chloride to grow the bacteria ठीक। अब इसको क्या हुआ, नेचुरली our DNA have N14 मॉलिक्यूल। जो हमारा नेचुरल नाइट्रोजन होता है वो N14 होता है, जो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन होता है वो N15 होता है। अब उन्होंने क्या किया, N14 जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, और जब ग्रो कराया तो उन्होंने देखा 4 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में बेसिकली उन्होंने किया था। फर्स्ट स्टेज में देखा जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है उसमें सिर्फ एक बैंड मिल रहा है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में, ये भी लाइन में लिखवा ही दे रहा हूं। They used cesium chloride CaCl2 density centrifugation technique in his experiment। कॉपी करिए। कॉपी करिए इसको बेटा सब लोग फटाफट। कॉपी हो जाए तो रिस्पॉन्ड करिए। सीरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl, मिस्टेकन था, लिखिए फटाफट, कॉपी करिए फिर बताइए। थोड़ा जल्दी करिए तो इसको आज खत्म कर दें इस टॉपिक को आज। Abhishek, I hope you also understand, तो must write noted clear, NTD noted का सिंबल हम लोगों ने बनाया था ना आपस में, कोडिंग
और क्लियर मतलब CLR। क्लियर है ये यहां तक सबको? यू ऑल हैव जस्ट मेंशन नोटेड, यू शुड राइट नोटेड एंड क्लियर। प्रीति, दीपिका, सिमरन, अभिषेक, आई होप इट इज क्लियर ना? अब समझिए, इसको इरेज कर दें। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे एक एडिशनल टूल यूज किया गया जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया इसमें कि नाइट्रोजन वाले मीडियम में, N15 मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, 20 मिनट के बाद उसको 20 मिनट तक छोड़ दिया उसको ग्रो करने को। तो आपको जैसा पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है, इट विल ऑलवेज रेप्लिकेट और इट विल रिप्रोड्यूस जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी नई प्रोजेनी बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, ये उनकी अपनी टेंडेंसी है। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें देखा उन्होंने एक बैंड बन रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ बैंड है N15, ये बैक्टीरिया है, पिलेट है बैक्टीरिया का, है ना। आफ्टर 20 मिनट क्या होगा, आफ्टर 20 मिनट क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगा। जो बैक्टीरिया है क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। यहां पे मैं DNA भी बना ही दूं, जो आपकी बुक में है बना हुआ। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये 2 कॉपी बनाएगा, जिसमें एक पुराना एक नया। ठीक, तो 2 कॉपी बना, इन दोनों को हमने P बोला, इनको भी P बोला, P मतलब पेरेंट। ठीक है, P बोले तो पेरेंट। तो ब्लैक तो पेरेंट हो गया, ब्लू वाला हमारा नया स्ट्रैंड हो गया N N N N। फिर इसको छोड़ दिया 20 मिनट के लिए, तो क्या देखा गया, तो जो ब्लैक था उसमें एक कॉपी DNA का कुछ ऐसा बना। ठीक, एक कॉपी हमारा ये बना और 2 कॉपी हमारा
न्यू 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 की जगह हम N14 लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक, यहां एक हमारा N14 है और जो दूसरा है वो क्या है, N15 है। इसमें जो मैंने टेस्ट ट्यूब में देखा, दो बैंड बन रहे थे, एक लाइट बैंड, ये जो डार्क बैंड है वो नीचे है क्योंकि ये हैवी है, और एक बैंड जो था वो लाइट है। ये N14 है और ये N15 वाला है, हाइब्रिड है। ठीक है, N15 और N14 के बीच का। ठीक है, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए। अभी भी डिस्कस करूंगा मैं, सिमरन, डोंट वरी। I will discuss about centrifugation, density centrifugation technique. यहां एक रह गया डायग्राम, छूट गया था। अब N15 थोड़ा सा नीचे था, ये थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया हाइब्रिड। ठीक है, कॉपी करिए। ड्रॉ कर लीजिए, फिर नोटेड एंड क्लियर जरूर लिखिएगा बेटा, है ना। मुझे थोड़ी, मैं तो असमंजस में रहता हूं कि पता नहीं कॉपी किया नहीं किया, तो 1 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं अलग करके लिख देता हूं नोट देके, ये जरूरी है आपके समझने के लिए। बैक्टीरिया ग्रोन इन radioactive N15 medium and left for replication। ठीक है, कॉपी हो जाए तो रिस्पॉन्ड करिएगा प्लीज, है ना। कॉपी एंड क्लियर फॉर बोथ द रीजन।
आप लोग की ड्राइंग लगती है बहुत स्लो है। Noted and clear, Abhishek. Very good. Rest of you, I am waiting so that I have to just answer about density centrifugation technique. Abhishek, do you know something about this? The question of Simran, density centrifugation. कुछ आइडिया है अभिषेक बेटा आपको? अभिषेक, प्रीति, सिमरन नहीं, दीपिका। ऑल ऑफ यू फटाफट रिप्लाई करिए बेटा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम सिमरन। सिमरन के सवाल का कोई जवाब आप दे पाएगा कोई? पहले तो दो सवाल हो गया सिमरन के। पहला हो गया व्हाट इज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए मैं बता दूं, पहले आंसर कर दूं क्योंकि इट विल टेक टाइम। देखो बेटा सिमरन, मैंने क्या कहा था अभी जस्ट, मैंने पीछे भी डायग्राम बनाया कि जब डीएनए कॉपी करता है ना, ये ब्लैक है, अगर मान लो जो डीएनए ब्लैक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ऑब्वियसली एक डीएनए 2 डीएनए बनाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगी, वी हैव 2 सीक्वेंसेस, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ईच ऑफ देम हैव अ 1 पेरेंटल डीएनए, ठीक। मतलब N15 है एक ब्लैक वाला, दूसरा है N14, ये है N14, ये है N15। क्लियर? अब बेटा जरा ध्यान से समझो, अब अगर हम इनको भी रेप्लिकेट करें तो ऑब्वियसली ये 2 से 4 बनेगा। तो हमने दोनों ब्लैक को एक जगह कर दिया, फिर 2 ब्लू को एक जगह कर दिया। ये देखिए मैंने दोबारा बना दिया ब्लैक, दिख रहा है ना बोर्ड पे? ये दिख रहा है आपको जो नीचे वाली लाइन बनाई है? लेट मी सी इन माय कैमरा। हाँ, आई होप दिस इज सी, दिस इज क्लियर विजिबल। अब देखिए ये N15 है, ये भी N15 है, लेकिन ये N14 है और ये N14 है, जो क्या है, ये सभी चारों स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल हैं। ध्यान से देखिए, दीज ऑल स्ट्रैंड्स आर पेरेंटल, जो इन 4 स्ट्रैंड्स को हमने सेपरेट किया है। कोई डाउट? अब जब ये N14 वाला स्ट्रैंड कॉपी करेगा तो ऑब्वियसली जो नेचुरल टेंडेंसी है सिस्टम की, बैक्टीरिया की या लिविंग की कॉपी करने की, तो वो भी N14 तो करेगा, तो ब्लू होगा। अब ये तो N15 हमने पहले जो डाला था रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए के साथ, वो था हमारा ये नाइट्रोजन। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो बट ऑब्वियस है कि ये भी हमारा एक एस्टेन क्या बनाएगा, N14 ही बनाएगा। तो यहां हमने दिखा दिया। तो 2 बिल्कुल नया होगा, जो प्रूफ करता है कि ये एक N14 जो इसके पास था और एक जो नया बना वो भी N14 ही होगा, क्योंकि नेचुरली नाइट्रोजन में 14 मतलब N14 जो है वो नेचुरल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये कॉपी होगी। क्लियर है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है इस चैप्टर का और ये सबको समझ में आना चाहिए। सिमरन समझ में आ गया कैसे बना? अब इसी को हमने यहां दिखा दिया। अब यहां इसको समझिए जरा, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला। पहले तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं, रिस्पॉन्ड करो बेटा। सिमरन समझ में आ गई ये बात कैसे हुआ? 4 स्ट्रैंड, 2 विद कंप्लीट ब्लू एंड 2 विद हाइब्रिड, 115 एंड 114 वाला पार्ट।
सिमरन रिस्पॉन्ड करिए। ओके, वेरी गुड। दीपिका क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो सिमरन ने कहा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नहीं, मम्मी दही से मलाई निकालती है ना मथानी से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज व्हाट द टेक्निक ऑफ स्पन द सॉल्यूशन or the colloidal solution to obtain the lighter molecule which is dissolved into that or suspended into that particles, right? आप वॉशिंग मशीन में सर्फ डालते हैं, पानी डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, क्या करता है वो उन हैवियर लाइटर पार्टिकल्स को, जो हैवियर जो भी पार्टिकल्स है उसमें वो नीचे दम जाती है, गंदगी कचरा। मथानी से जब हम दही से मलाई क्रीम निकालते हैं, चलाते हैं मिक्सी में अगर, तो क्या हो रहा है वहां? तो लाइटर और हैवियर दो तरह के पार्टिकल्स होंगे। लाइटर ऊपर तैरेगा, हैवियर होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो डेंसिटी इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक मीडियम है सीजियम क्लोराइड का, CaCl का, जो अभी आपको बताया मैंने, ये एक नाम है उस टेक्निक का। तो सेंट्रीफिकेशन में जब आप उस बैक्टीरिया को जब आप मशीन में डाल देंगे, तो बायो जो मॉलिक्यूल है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये डीएनए हमारा, वो हैवी है, वो सेटल डाउन हो जाएगा। वही दिखाया यहाँ N15, ये हाइब्रिड है, थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे दो बैंड बनेंगे, एक हल्का वाला है दो, तो वो ऊपर बैंड बना लेगा, जो हाइब्रिड वाला है वो नीचे बना लेगा, दो जगह दिखेगा उसका बैंड। और हम उस तरह से डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बिल्कुल। कैरेक्टर में डिफरेंस यह है कि हाइब्रिड मतलब सर्टेन प्रॉपर्टीज आर नॉट ऑफ दैट, राइट? एक्सक्यूज मी। देखिए, नाइट्रोजन जो रेडियो एक्टिव है उसको हम इजीली आइसोलेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए उसको रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाता है। यहां हमें उसकी प्रॉपर्टीज नहीं जाननी है, यहां हमें प्रूफ करना है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है उसमें एक स्ट्रैंड हमारा नया होता है और एक स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल होता है। तो उसको प्रूफ करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आपने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को पहले रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया, तो N15 हो गया, एक पूरा का पूरा डीएनए हमारा। फिर जब वो रेप्लिकेट करेगा तो एक नेचुरल नाइट्रोजन बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करके बनाएगा। तो देयर इज नो सच सडन द जेनेटिक बिहेवियर, क्योंकि ये स्टडी नहीं की गई है, ठीक ना? हमें वी हैव टू प्रूव दिस, it is a semi-conservative mode of replication that shows the DNA that will be produced from the parental DNA always consists of the one parental and one new DNA strand, and that is what the technical meaning of semi-conservative mode of replication. Clear? ये कॉपी कर लिया सबने? आई होप दिस इज ऑल डन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, ये इरेज कर दूं? शुड आई रिमूव दिस? सिमरन ने कर लिया है, प्रीति, अभिषेक and Deepika, you have not responded. Should I remove this, erase it? You all have done this now? मिटा दूं इसे? आप लोग बताते नहीं है। I am waiting for your response desperately. Abhishek, you have not responded. Preeti, you have not responded. Okay. Thank you. You people are very late. पता नहीं, ऐसा लगता है आपको मेरा नाम, अपना नाम सुनने में अच्छा लगता है कि क्या? 10 बार 20 बार बोलते हैं तब आप जाके रिस्पॉन्ड करते हो। या टेक्निकल इश्यूज हैं, आई डोंट नो।
आगे का टॉपिक डिस्कस किया जाए, रेप्लिकेशन, या पीछे के टॉपिक से कुछ रिवाइज किया जाए? व्हाट यू पीपल सजेस्ट, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है एंड आई हैव 15 मिनट लेफ्ट। जैसा आप लोग बताइए, शुड आई स्टार्ट न्यू टॉपिक? एंड द न्यू टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन, या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की जाए? क्या कहते हैं? बहुत लेट से कहते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं रेप्लिकेशन। दीपिका, पूनिया, सिमरन, प्रीति, अभिषेक, लिखिए मुद्दे की बात। डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसमें क्या है? अब डीएनए रेप्लिकेशन में दो चीजें बिल्कुल नई है जो हमें जाननी है। अभी तक तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें से आपको ये देख ही लिया हम लोगों ने कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है एक नया डीएनए कॉपी बनाता है। मतलब रेप्लिकेशन रिप्रेजेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट द डीएनए विल प्रोड्यूस एज अ टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। गॉट इट? अब इसको समझने के लिए कि क्या हो रहा है रेप्लिकेशन में, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क एंड रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन बबल। तो लिखिए रेप्लिकेशन बबल ऑब्लिक आई इज पार्ट नहीं लिखेंगे, पार्ट गलत हो जाएगा, पोर्शन ऑफ डीएनए कर दीजिए, है ना। replication bubble oblique I is portion of DNA that is responsible for producing new DNA strand। अब इसको समझना क्या है, तो ऐसे समझिए। ठीक, अब ये मान लीजिए डीएनए है, इसको रेप्लिकेट करना है। क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान में हो, हमने आपको डिस्कस किया है, बताया है कि जो डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये मेनली इस हेलिकल स्ट्रक्चर का जो रीजन है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान में हो आपको, थर्ड और फिफ्थ के बीच में पी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक ना। एंड दैट हेलिकल स्ट्रक्चर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब ये क्या करेगा? अब ये सबसे पहले ओपन करेगा एंजाइम हेलिकेज के हेल्प से। किसके हेल्प से? हेलिकेज। और ये रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन बबल बनाएगा। कैसे भाई? तो
क्या हुआ, एक ये स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखना है ना, रेप्लिकेशन बबल। ठीक, अब यही रेप्लिकेशन बबल, आप इसको समझिए, ये फॉर्क का रूप ले लेगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा कुछ, ठीक, थर्ड 5 5, ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। वो आप यहां पूछ सकते हैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कुछ नहीं है, इसी को बीच से क्या कर दिया गया, बीच से कट किया, अलग किया, सेपरेट किया दिखाने के लिए, हालांकि डीएनए को कट कर देते हैं दिखाने के लिए, तो ये कुछ इस तरह का ओपन स्ट्रक्चर हमने दिखाया ताकि इजीली आपको समझाया जा सके। ठीक है, डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड, हेलिकेज में लिखेंगे, ये एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करता है, खोलता है, तभी ये रेप्लिकेशन बबल बनता है। ठीक है, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, फटाफट ड्रॉ करिए, मेंशन करिए। यहां लिख लीजिए, enzymes used in replication। पहला हेलिकेज लिखा हमने, लिखेंगे इट अनवाइंड्स द डीएनए, ठीक, या इसी को हम अनजिप कहते हैं, खोलना, अनजिप द डीएनए। ठीक, लिखिया, उसके बाद लिखेंगे दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज, यही तो असली है खतरनाक, पॉलीमरेज, पॉलीमेराइजेस होगा, एक्सक्यूज मी, पॉलीमेराइजेस डीएनए strand to form new DNA। ठीक है, कॉपी करिए, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, है ना, नीचे दिक्कत होगी लिखने में, मुझे उम्र दराज आदमी हूं, झुकने में थोड़ी परेशानी होती है। फिर थर्ड लिखेंगे, थर्ड एंजाइम टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज, ठीक है, यहां लिखेंगे रिमूव्स कॉइलिंग टेंशन
कॉइलिंग टेंशन फ्रॉम डीएनए। अब इसको समझिए, जैसे ही डीएनए बीच से खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा, है ना, मोर क्वाइल्ड। तो टेंशन बढ़ गया, तो इसको थोड़ा सा क्या करेगा, ढीला करना है इसको, है ना, क्वाइलिंग टेंशन को कम करना है ताकि ये फिर से और क्या हो सके, ओपन हो सके। तो ये काम कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा, ठीक है। टोपो आइसोमरेज हो गया, मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज। हाँ, फिर है डीएनए लाइगेज acts as molecular glue to join a small DNA fragments। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं मैं ताकि इसको लिख सकूं इसी स्पेस में। फिर फिफ्थ वन इज एसएसबी प्रोटीन। ये क्या है भैया, तो ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, तो ये रिक्वाइलिंग से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम रिक्वाइलिंग। कॉपी करिए अब जरा। कॉपी करिए फिर मेंशन करिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, जो डीएनए कॉपी बना रहा है, वो डीएनए किस तरह से कॉपी बना रहा है और अलग अलग एंजाइम्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने में। चलिए फिर कॉपी करते हैं इसको। इसके बाद का पार्ट जो भी है मुझे याद दिलाइएगा अगले टर्म में कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेम ऑफ द एंजाइम। फिर हम लोग इसको आगे वाले टर्म में डिस्कस करेंगे। मेंशन करिए आप लोग, रिप्लाई करिए, कॉपी हो गया। दीपिका, प्रीति, सिमरन, अभिषेक, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Okay, Deepika responded, Preeti responded, Simran responded. Very good. And what about Abhishek? Are you still writing? So आज का टॉपिक कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था ना? खास ये वाला टॉपिक रेप्लिकेशन। अभी और मजा आएगा जब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना? Abhishek, I am waiting for your response. Have you done? चलिए खैर, it's all about today's class.
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। इसके बाद हम लोग अगले टर्न में, एंड इट्स योर जिम्मेदारी, इट्स योर यू नो responsibility to just let me know in the next class. This was the last topic when I have mentioned all the 5 components or the enzymes which is used during the replication method, replication process. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई होप कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। कोई डाउट मुझे लगता है नहीं होगा इसमें, है ना? कोई डाउट है इसमें किसी को भी? चलिए, कोई नहीं। गुड इवनिंग, टेक केयर, एंड ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।